Good morning everyone. Hope you all are fine and safe at your home. Today we will start our new chapter, that is laws of motion. Okay, these are the some topics in laws of motion. First is contact and non-contact forces. It's SI and CGS units. First law of motion, Newton's second law of motion, Newton's third law of motion. Weight and mass and inertia. Let us start with introduction, that is of laws of motion. In the chapter number 2, that is motion in one dimension, we studied there that is some concept related, that is displacement, distance, velocity, acceleration. Now in this chapter we are studied that is force. First of all, we would like to able to answer specific question related to the causes of motion, such as what mechanism causes motion, कि कौन से mechanism से motion होता है. Why do some objects accelerate at high rates than others? कुछ objects high acceleration से कैसे move होते हैं than others? Why it is difficult to control a car on a wet road than on a dry road? कि कार को मतलब डिफ़िकल्ट कितना है कंट्रोल करना वेट रोड पे रादर देन दैट इज़ ड्राई रोड. द आंसर्स टू दिस एंड सिमिलर क्वेश्चन टेक अस टू द सब्जेक्ट ऑफ द डायनामिक्स, द रिलेशनशिप ऑफ द मोशन टू बी द फोर्सेस दैट कॉजेज. इसका आंसर क्या है, हम इसकी जो स्टडी है वो क्या पढ़ेंगे, दैट इज़ फोर्सेस और उनका कारण. In this chapter, we shall describe the change in motion of the particle using the concept of force and the mass and the concept developed in the kinematics, namely displacement and velocity. ज़्यादातर क्या पढ़ेंगे, that is force, mass, acceleration. The principle of dynamics can be wrapped up in a neat package of three fundamental or basic statements called Newton law of motion. इसकी स्टडी हम किस में पढ़ेंगे, न्यूटन ने 3 लॉज दिए थे, that is first law of motion, second law of motion and third law of motion. We shall discuss the 3 basic laws of motion which are based on the experimental observation and formulated nearly 3 centuries ago by Sir Isaac Newton. न्यूटन ने 3 laws दिए. फर्स्ट लॉ ये कहता है, the first law states that when the net force on the body is 0, जब फोर्स क्या हो जाए, 0 हो जाती है, इट्स मोशन डज नॉट चेंज, तो उसका मोशन चेंज नहीं होता. सेकेंड लॉ रिलेट्स फोर्स टू एक्सेलेरेशन व्हेन द नेट फोर्स इज नॉट 0, जब नेट फोर्स 0 नहीं होती. देन थर्ड लॉ इज द रिलेशन बिटवीन द फोर्सेस एंड दैट 2 इंटरेक्टिंग बॉडीज exert on each other. These law based on the experimental studies of moving bodies are fundamental in 2 ways. Firstly, they can't be deduced or proved from other principle. Secondly, they make it possible to understand most familiar kinds of motion. They are the foundation of classical mechanics, और इसे क्या बोलते हैं, न्यूटोनिक मैकेनिक्स, न्यूटोनियन. Newton's law are not universal. However, they require modification at very high speeds. कभी यूनिवर्सल नहीं होते और ये मॉडिफिकेशन मतलब हाई स्पीड्स पे जाते हैं एंड वेरी स्मॉल साइजेस. नेक्स्ट इज फोर्स. अब फोर्स क्या है हमारे पास, द कंसेप्ट ऑफ फोर्स गिव अस क्वांटिटेटिव डिस्क्रिप्शन ऑफ द इंटरेक्शन बिटवीन 2 बॉडीज और बिटवीन अ बॉडी एंड द एनवायरनमेंट. जो फोर्स है 2 बॉडीज़ के बीच की स्टडी है. Let us discuss the force. When you push or pull a car, stuck is mud. Mud क्या होता है, चीकड़. ठीक है, जब आप पुल करते हो किसी कार को कि वो किस में फंसी हुई है, कीचड़ में फंसी हुई है. ठीक है, यू एक्सर्ट अ फोर्स, आप फोर्स अप्लाई करते हो, देन फोर्स मे और मे नॉट बी एबल टू मूव. वो कई बार फोर्स हम क्या लगाते हैं, वो चेंज भी हो जाती है, मूव भी कर सकती है कार को, नहीं भी मूव कर सकती. और फोर्स इज एन एजेंट ऑफन टर्म एज पुल और पुश. ये पुल और पुश ही होता है विच कैन मूव और टेंड टू मूव एन ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट को मूव करने में भी हेल्प करती है. कैन स्टॉप और टेंड टू स्टॉप एन ऑब्जेक्ट इन मोशन, और स्टॉप करने में भी हेल्प कर सकती है. कैन चेंज और टेंड द चेंज ऑफ डायरेक्शन ऑफ मोशन, डायरेक्शन ऑफ मोशन को भी चेंज कर सकती है. कैन इंक्रीज और डिक्रीज द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट, इंक्रीज और डिक्रीज भी कर सकती है स्पीड को.
From all these cases we can conclude that force is actually producing acceleration. Actually क्या करती है force? acceleration produce करती है. A force in an agent whose action can produce acceleration in a body. A force can also change the shape of the object when acting on it. force क्या करती है? shape को भी change करती है. For example, when you squeeze a soft rubber ball, it will be deformed to some extent. जब आप squeeze करते हो कोई भी रबर बॉल को, दैट इज़ क्या हो जाती है? वो डिफॉर्म हो जाती है, मतलब अपनी शेप चेंज कर लेती है. इन अदर वर्ड्स, दैट इज फोर्स कैन बी डिफाइंड एज एन एजेंट विच कैन चेंज टू टेंड, दैट इज टू चेंज द डिमेंशन ऑफ द, जो ऑब्जेक्ट के डिमेंशन भी चेंज कर सकती है, दैट इज लेंथ, ब्रेथ और हाइट, और प्रोड्यूसेस और टेंड्स टू प्रोड्यूस एन एक्सेलेरेशन इन अवर ऑब्जेक्ट, एंड एक्सेलेरेशन प्रोड्यूस करती है. नेक्स्ट इज there are two types of forces. First is contact forces and next one is the non-contact forces. That is, first one is contact forces. What are contact forces? Contact forces are those forces, the force between the two bodies when they are physically in contact is known as contact. जब दो बॉडीज एक दूसरे के कांटेक्ट में आती हैं तो वो कौन सी फोर्स होती है? कॉन्टैक्ट फोर्सेस. एग्जाम्पल्स ऑफ सच अ फोर्स आर नोन एज फ्रिक्शनल फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन, tension in string, and force acting between two bodies when they collide. First one is the frictional force. This is the contact force which come into play when a body slides or tends to slide over the another. ये तब प्रोड्यूस होती है जब कोई बॉडी एक दूसरी बॉडी के ऊपर दैट इज स्लाइड करती है. ओके, दिस फोर्स कम्स इन टू प्ले ओनली व्हेन देयर इज अ रिलेटिव मोशन बिटवीन टू बॉडीज. अगर दो बॉडीज में क्या होगा? मोशन होगा, तो ये फ्रिक्शनल फोर्स प्रोड्यूस्ड होगी. इफ़ द बॉडीज आर रेस्ट, अगर रेस्ट पे है वो, देयर इज नो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन देम. फर्स्ट वन इज द नॉर्मल रिएक्शन. व्हाट इज द नॉर्मल रिएक्शन? व्हेन अ बॉडी इज प्रेस्ड अगेंस्ट द रिजिड सरफेस. जब आप किसी भी बॉडी को प्रेस करते हो रिजिड सरफेस के अगेंस्ट, तो जो उनकी फोर्स है दैट इज द डायरेक्शन क्या होती है उसकी? परपेंडिकुलर. The body experience a force which is perpendicular to the surface in contact. This force is called as normal reaction. It always acts perpendicular to the two bodies in contact. मतलब एक दूसरे के contact में आने के लिए जब एक डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल दैट इज हॉरिजॉन्टल है और एक वर्टिकल है दैट इज अ परपेंडिकुलर, तो आप बोलोगे दैट इज अ नॉर्मल रिएक्शन. ठीक है. टेंशन. When a body is suspended from the string becomes taut. जब आप टाई करते हो किसी भी बॉडी को स्ट्रिंग के साथ, तो स्ट्रिंग क्या हो जाता है? टाउ. ठीक है. दे टू बैलेंस द वेट ऑफ द बॉडी, द फोर्स कम इन टू प्ले. मतलब वेट को बैलेंस करने के लिए जो फोर्स आती है दैट इज स्ट्रिंग में लगती है, वो वेट को अपोज कर देती है. दिस फोर्स डिवेल्प इन अ स्ट्रिंग इज कॉल्ड फोर्स ऑफ टेंशन. टेंशन ऑलवेज एक्ट ऑन अ स्ट्रिंग टुवर्ड्स द पॉइंट फ्रॉम विच द स्ट्रिंग इज सस्पेंशन. हमेशा उस पॉइंट पे लगती है जहाँ पे स्ट्रिंग को सस्पेंड किया जाता है, लटकाया जाता है. द टेंशन इन अ स्ट्रिंग इज सेम एवरीवेयर इफ द स्ट्रिंग इज मासलेस. अगर उसका मास नहीं है तो टेंशन हर जगह हर पॉइंट पे सेम ही होगी. नेक्स्ट है फोर्सेस ड्यूरिंग कोलिजन. कि कोलिजन मीन्स अगर कोई टकराता है, दैट इज दो बॉडीज टकराती हैं तो फोर्सेस पैदा होती हैं, दैट इज फोर्स लगती है. व्हेन टू बॉडीज कोलाइड दे एक्सर्ट अ फोर्स ऑन ईच अदर. जब दो फोर्सेस कोलाइड करती है तो उन पे फोर्स लगती है. दीज टू फोर्सेज आर ऑलवेज इक्वल एंड ऑपोजिट. वो हमेशा इक्वल और ऑपोजिट होती है. दिस फोर्स एक्ट्स फॉर अ शॉर्ट टाइम एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग द बॉडीज मूव अपार्ट आफ्टर कोलिजन. शॉर्ट टाइम के लिए लगती है और रिस्पॉन्सिबल होती है किसके लिए? कोलिजन करने के लिए. ओके, दीज आर द सम कॉन्टैक्ट फोर्सेज. नाउ अनदर कंसेप्ट इज द नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेज. Another class of the forces which do not involve physical contact between two objects. जिसमें डिस्टेंस होता है, कोई फिजिकल कॉन्टैक्ट नहीं होता, दैट इज अ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेज. दिस इज कॉल्ड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेज. सम एग्जाम्पल ऑफ दीज टाइप ऑफ फोर्सेज आर ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स. दीज फोर्सेज आर नॉन एज दैट इज फील्ड फोर्सेज और एक्शन एट अ डिस्टेंस फोर्स. और इसको हम क्या बोलते हैं? फील्ड फोर्सेस भी बोलते हैं. अकॉर्डिंग टू माइकल फैराडे, इन सच सिचुएशन दैट इज एन ऑब्जेक्ट मॉडिफाइज द रीजन अराउंड इटसेल्फ इन सच अ मैनर दैट व्हेन अनदर ऑब्जेक्ट कम्स इनटू दैट रीजन इट एक्सपीरियंस अ फोर्स. जब मतलब एक रीजन को दूसरे रीजन में छोड़ा जाता है दैट इज इट एक्सपीरियंस अ फोर्स.
Such a region is called, that is, field of the object. For example, ग्रेविटेशनल फोर्स, जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है वो टू मासेस के बीच में लगती है. दिस इज मास 1, दिस इज मास 2, मतलब ये अर्थ का मास है, ये ऑब्जेक्ट का मास है. द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विच एक्सर्ट्स बिटवीन टू पार्टिकल्स ड्यू टू देयर मासेस इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स. ठीक है, जो फोर्स मासेस के बीच में लगती है दैट इज अ ग्रेविटेशनल फोर्स. एंड दिस इज फोर्स विच बाइंड्स द इंटायर यूनिवर्स. दिस फोर्स कीप्स ऑब्जेक्ट्स बाउंड टू द अर्थ, अर्थ के साथ बाउंड करके रखती हैं. एंड गिव राइज टू व्हाट वी कॉमनली कॉल, दैट इज वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट. दिस फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर. अट्रैक्टिव कैसे? अर्थ अपनी तरफ सबको खींचती है, दैट इज ऑब्जेक्ट्स को अपनी तरफ ही खींचती है. जैसे कोई भी आप ऑब्जेक्ट थ्रो करोगे अपवर्ड डायरेक्शन तो वो नीचे ही आएगा ड्यू टू अर्थ्स gravity. Next one is the electrostatic force. The force of attraction which exerts between two charges is called electrostatic force. ठीक है, जो forces charges के बीच में लगती हैं. For example, there are unlike charges. Unlike charges means both the charges are different. One is the positive, second one is the negative. Then this is the attractive force. Okay, and another is the repulsive. Repulsive क्या था? That is two charges, like charges. अगर both charges are, that is positive, then force is repulsive. तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, धक्का मारेंगे. ठीक है, the force of attraction which exists between the two charges is known as electrostatic force. Third one is the magnetic force. The force of attraction which exerts between two magnetic poles. जो force of attraction magnetic poles में लगती है, that is north और south, south और north, उसको बोलते हैं magnetic force. ये फोर्स अट्रैक्टिव भी हो सकती है, रिपल्सिव भी हो सकती है. इफ़ देयर इज अ टू पोल्स, सेम पोल्स, देन इट विल बी रिपल्सिव. ओके, अदरवाइज इट विल बी अट्रैक्टिव. इट टू एक्सटेंड्स टू इन्फिनिटी. द मैग्नेटिक फोर्स बिटवीन टू लाइक पोल्स इज रिपल्सिव while the two unlike poles is attractive. Okay, this is the concept of, that is, contact forces and non-contact forces. Revise this. Thank you everyone. Have a nice day.